आज की डिस्कशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट है कि when different waves combine at a point, then the resultant displacement or amplitude is equal to vector sum of the displacement due to individual waves. So if there are n number of waves coming, if there are n number of waves having individual displacement y1, y2, y3 up to yn, then according to the principle of superposition, resultant displacement or amplitude of the point of the particle at that point where these interact, where these waves interact will be equal to y1, y2, y3 up to yn। अब इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि let we have a string or let we have a spring fixed at both ends and crests are produced from both ends. These propagate toward each other till meet at the center, where resultant amplitude increases and becomes equal to the sum of the amplitude due to individual waves. After meeting these waves proceed in the same direction as shown. Here is a crest, here is the crest. Ultimate these comes close. अल्टीमेट क्या होगा, ये वेव बनी और ये जो y है ये y1 है और ये y2 है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और फिर ये वेव y2 इधर जा रही है और y1 वाली जो है वो अपनी अपनी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगी। ये नहीं होगा कि यहाँ पे बैठ जाएंगी, मिलेंगी, बैठ जाएंगी, आए जनाब हम कैंटीन पे आपको चाय पिलाते हैं, समोसे खिलाते हैं, नहीं। जस्ट कंबाइंस फॉर एन इंस्टेंट एंड मूव्स फर्दर इन दी डायरेक्शन, जो उनकी अपनी अपनी डायरेक्शन है उसमें मूव कर जाएंगी। लेकिन अगर इस तरह वेव्स हैं कि इधर से क्रस्ट आ रही है और इधर से जो है वो ट्रफ आ रही है,
इधर से क्रस्ट आ रही है, इधर से ट्रफ आ रही है. अल्टीमेट these becomes close and finally नहीं, we get a straight line. वजह क्या बन गई कि यहाँ जो y बना, दिस इज y1 माइनस y2, और उसके बाद ये जा रही है y1 एम्पलीट्यूड वाली, और ये जा रही है y2 एम्पलीट्यूड वाली, अपनी अपनी डायरेक्शन में मिलने के बाद जा रही है. तो इस प्रिंसिपल के बिहाफ पे आगे 3 मेन फिनोमिनाज जो है वो इस पे बेस करते हैं. इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, फिर है बीट फिनोमिना, और तीसरे नंबर पे जो है वो है सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स. तो अब इसको हम आगे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले है इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स. इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स हम डिफाइन करते हैं. कम्बिनेशन आर सुपरपोजिशन of the waves, combination या superposition of the waves at a point in the media, combination या superposition of the waves at a point in the media in such a way that at one point these enhance their effect, and at some other point these cancel their effect, called interference of the waves, where these wave enhance their effect, called constructive interference, which developed when crest of one wave overlaps the crest of other, and trough of one wave overlaps the trough of other. As a result, we get a wave of large crest and large trough. That is, effects increases, called constructive interference, and where these waves cancel their effect, called destructive interference, which develop when crest of one wave combine with the trough of other. So these cancel their effects. So these cancel their effect, called destructive interference. In case of
sound waves, we get loud sound. In case of sound waves, we get the loud sound at a point where constructive interference occur, and we get faint sound where destructive interference occur. In case of light waves, we get maximum brightness where constructive interference occur, and we get darkness at the point where destructive interference. तो इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस सभी वेव्स के अंदर जो है वो मुमकिन है. वाटर वेव्स हों, वेव्स ऑन द स्ट्रिंग हों, साउंड वेव्स हों, लाइट वेव्स हों, एट्सेट्रा, सब के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी होती है. एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं क्लियर कर दूं, ये कभी नहीं होगा कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके सारे बल्ब ऑन कर दें और ब्राइटनेस को बढ़ा दें और आप ये कहना शुरू कर दें कि ये देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. नो, दिस इज़ नॉट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. या सारे बल्ब ऑफ कर दें और कमरे के अंदर अंधेरा हो जाए और आप कहें देखें ये कैसा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. दिस इज़ नॉट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस तब होगा जब ये दोनों फिनोमेनास, दोनों नुक्ते, दोनों बातें, मीन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों होंगे, एंड दीज विल टेक्स प्लेस एट द वेरी रेगुलर इंटरवल. मसलन जहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव है एंड आई हियर द लाउड साउंड, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है देयर इज़ नो साउंड्स. अगेन नेक्स्ट पोजीशंस के ऊपर देयर इज़ अ लाउड साउंड, और उससे नेक्स्ट फिर जो है देयर इज़ नो साउंड या फेंट साउंड. तो ये अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये इंटरफियरेंस होता है. ये शुड बी क्लियर. ये ना समझना कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव से सेपरेट कोई चीज़ है, नहीं. हमेशा जब हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है तो उसकी पहचान यही होगी कि एक जगह अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो उसके साथ नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, उससे नेक्स्ट फिर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, उससे आगे फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा है. तो ये अल्टरनेट पोजीशंस पे और डेफिनेट पोजीशंस पे और डेफिनेट इंटरवल पे ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का होना जो है ये पहचान होगी इंटरफेरेंस की. चाहे आप लाइट की बात करें, साउंड की बात करें, वाटर वेव्स की बात करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो नुक्ता है. इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हम साउंड वेव्स का डिस्कस करते हैं. एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है. Experimental demonstration. We have two U-tubes
which can slides across each other as shown in the figure. ये दो गिलास ट्यूब्स हैं और यहाँ एक जॉइंट है रबर का जॉइंट है और ये ऐसे करके रबर का जॉइंट है, दो ट्यूब्स को मिला रहा है सो दैट कैन बी कंप्रेस्ड। अब ये इनलेट है, ये आउटलेट है, ये एंड ए है, बी है, सी है और ये रास्ता जो है वो डी है। तो इसमें क्या करते हैं, लेट अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज हेल्ड ओवर द ओपन एंड, दैट इज इनलेट के ऊपर एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को होल्ड किया जाता है। तो इसकी वाइब्रेशन से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दीज एंटर्स इनटू द ट्यूब एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से आधी वेव्स इधर चली जाती है, आधी वेव्स इधर चली जाती है। इसमें बेसिकली इंटेंसिटी डिवाइड होती है, याद रखना इंटेंसिटी डिवाइड होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात, ये एक ही सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हैं जो हर लिहाज से एक जैसी, मीन उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका एम्पलीट्यूड और फेज ये सेम है। और अब हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये वेव्स इस रास्ते को फॉलो कर रही हैं और आधी इस रास्ते को फॉलो कर रही हैं। कुछ ने आना है ए बी सी और कुछ ने आना है ए डी सी। अब यहाँ एक स्टूडेंट है, वो कान लगा के बैठा है और मैंने उससे पूछना है कि आया आपको कोई आवाज़ सुनाई दी है या नहीं। तो फर्स्ट केस जो बनेगा वो क्या होगा कि लेट फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी इज इक्वल टू ए डी सी। Distance traveled by the waves from this path is equal to the distance traveled by the waves coming from this path. So their path difference is 0. अगर ये डिस्टेंस ए बी सी और ए डी सी अगर बराबर है तो पाथ डिफरेंस 0 है। दैट इज क्रस्ट ऑफ वन वेव। ये साउंड वेव है तो लफ्ज़ कंप्रेशन का लिखते हैं। कंप्रेशन of one wave combined with the compression of other and same is for rarefaction. As a result, we get loud sound called कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर मैं उस स्टूडेंट से पूछता हूं कि हाँ भाई सुनाइए, क्या आप
लाउड साउंड सुन रहे हैं, तो उसने कोई ख़ास जवाब जो है वो नहीं दिया। वो कह रहा है बस साउंड आ रही है, नॉट अलाउड। लेकिन मैं उस पर कन्विंस कर रहा हूँ, उसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाउड साउंड है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन है इंटरफियरेंस की कि जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, पाथ डिफरेंस इज 0, तो दैट इज अ कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो जहाँ पे लाउड साउंड है, अगर वो नाम मानने वाला रवैया इख्तियार करता है तो फिर पता क्या करते हैं, ये जो रबर जॉइंट हमने लगा रखा है, मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, इस रास्ते को बंद कर देता हूँ, तो इधर से आने वाली वेव्स ख़त्म, सिर्फ एक तरफ से आ रही हैं। तो क्या होगा कि उसको पहले से कम आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, मीन उसकी लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। नॉर्मल साउंड जो ट्यूनिंग फोक की होगी, अगर उसने पहले चेक किया होगा ट्यूनिंग फोक्स को वाइब्रेट करके कान के साथ लगा के कि ये इसकी नॉर्मल साउंड है, तो वो उसको नॉर्मल साउंड सुनाई देगी, लाउड साउंड नहीं। अब मैं उसको कहूँगा कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अब वो दूसरा सवाल वो कर देगा, सर जी आपने तो कहा था कि कंस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव भी होगा। तो अब हम क्या करते हैं, उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इस साइड को मूव करते हैं राइट, बिल्कुल स्लो स्लो मूव करते हैं, टिल ये ऐलान कर देता है कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है। लेकिन इसका चेक कैसे होगा कि हम चेक करें इस बात को कि ये वाकई डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। वो क्या है, फिर उसी तरह रबर का जो जॉइंट है, इसको मैं प्रेस कर देता हूँ, इस रास्ते को बंद कर देता हूँ, एक ही तरफ से वेव्स आ रही हैं, नॉर्मल साउंड सुनाई देगी। ट्यूनिंग फोक्स की जो नॉर्मल साउंड है वो उसको सुनाई देगी। लेकिन मैं जो ही इस हाथ को जहाँ से उठा देता हूँ, वो आवाज़ भी गायब, वो भी गायब। मतलब साफ जाहिर है कि इधर से आने वाली वेव्स और इधर से आने वाली वेव्स, एक तरफ से अगर कंप्रेशंस पहुंचा, दूसरी तरफ से रेयरफेक्शंस पहुंचा, एक तरफ से अगर कंप्रेशंस पहुंचा, दूसरी तरफ से रेयरफेक्शंस पहुंचा, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देंगे। दैट्स वाई द लिसनर क्या अनाउंस करता है, नो साउंड, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा भाई। तो मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इस तरह हम प्रैक्टिकली इस बात को कर सकते हैं, लैब के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो अगर हमारे पास ऑप्शन हो इनकी लंबाई वगैरह वाली ऑप्शंस, और हम इस साइड को मूव करते जाएं राइट पे, तो इस डिस्ट्रक्टिव के बाद फिर कंस्ट्रक्टिव होगा, उसके बाद फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, और ये ऑल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर वी गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम। और दोबारा इसी तरह जो है आवाज़ कभी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी। और इसका मतलब है कि ये इंटरफेरेंस हो रहा है साउंड्स का। तो इसके बाद जो है, अच्छा इधर मैं लिख देता हूँ, तो ये तो इफ़ वी मूव द राइट साइड ट्यूब आफ्टर some distance या displacement, the listener hear no sound. That is destructive interference has taken place.
here the path difference is equal to lambda by 2, that is ADC minus ABC is equal to lambda by 2. This is the condition of destructive interference. तो अगर मैं इस बात को अलहदा कंडीशंस की सूरत में लिख दूं कि इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती हैं, तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस नंबर 1, sources should be coherent. सोर्सेज मीन जो वेव्स प्रोड्यूस करने वाले एजेंट होंगे, शुड बी कोहिरेंट, दैट इज दीज प्रोड्यूस द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड. और एक लफ्ज़ और होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स. तो वो फेज डिफरेंस 0 हो या पाई रेडियंस या 2 पाई रेडियंस या 3 पाई रेडियंस, इस तरह n पाई रेडियंस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पाई रेडियंस का अगर फेज डिफरेंस है तो ये वेव्स कोहिरेंट कहलाती हैं या सोर्सेस कोहिरेंट कहलाते हैं. और जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकल अप्रोच में, लाइट का प्रैक्टिकल हो, साउंड का प्रैक्टिकल हो, तो उसके अंदर हमेशा एक ही सोर्स से आने वाली वेव्स को सब डिवाइड किया गया और फिर उन्हें कंबाइन किया गया, तो तब इंटरफेरेंस जो है वो ऑब्जर्व हुआ. सो सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट इज द बेस्ट कंडीशंस ऑफ द इंटरफेरेंस. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इंटरफेरेंस कभी भी मुमकिन नहीं होगा. और उसका तरीका भी बता दिया, और इस बात को अपने जहन में रखना है कि हाउ वो प्रोड्यूस द कोहेरेंट सोर्सेस. तो जैसे अभी हमने प्रैक्टिकल एक डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक ट्यूनिंग फोक है, उससे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया. तो अब बताएं फिर उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, उसमें कोई डिफरेंस हो सकता है? कभी भी नहीं. ये जो वेव्स होंगी ये कोहेरेंट कहलाएंगी. इन्हें जब हमने कंबाइन कर दिया बाय आवर मैकेनिकल वे, तो क्या हुआ? वी ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड. यही बात लाइट के अंदर भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, कि जब हम एक पॉइंट सोर्स से आने वाली लाइट को 2 हिस्सों में तकसीम करके फिर उसे कंबाइन करेंगे, वी विल ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. उसके बाद नंबर 2, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda up to n lambda. जहाँ जहाँ पाथ डिफरेंस की ये कंडीशंस फुल होंगी वहाँ हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और नंबर 3, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference should be equal to lambda by 2. 0 और lambda के दरमियान में एक पोजीशन होगी जहां पाथ डिफरेंस कितना बनेगा? lambda by 2. तो इसका मतलब है यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव, यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव, तो इन दोनों की मेन पोजीशंस के ऊपर क्या हो रहा होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा. 3 lambda by 2 lambda पे कंस्ट्रक्टिव, 2 lambda पे डिस्ट्रक्टिव, तो एग्जैक्ट उनके सेंटर पे या मेन पोजीशंस पे जो बनेगा 1.5 लैम्डा या 3 लैम्डा बाई 2,
तो 1.5 लैम्डा और 2 लैम्डा का मीन निकालें तो 1.5 लैम्डा, उसी को हम 3 लैम्डा बाई 2 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है जहाँ कंस्ट्रक्टिव तो एग्जैक्ट इनके दरमियान में इस पोजीशन पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह 5 लैम्डा बाई 2 एंड odd multiple of lambda by 2. So these are the condition of interference। और आखिर में एक चीज़ है, वो है वेव शेप। वेव शेप की मदद से भी हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, वेव शेपिंग। इसमें लेट कि ये दो वेव्स हैं, ये दो वेव्स, और रिजल्टेंट क्या बन रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है, ये रिजल्टेंट बन रहा है। तो ये जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड है ए वाई इज इक्वल टू ये y1 y2, दिस इज y1 प्लस y2। तो रिजल्टेंट वेव शेप जो है, रिजल्टेंट वेव हैज़ एम्पलीट्यूड वेरी इक्वल टू सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वेव्स। और आप देख रहे हैं कि वो कंबाइन कैसे हो रही हैं कि एक की क्रस्ट दूसरे की क्रस्ट फर्स्ट की क्रस्ट के ऊपर आ रही है। क्या मतलब है, क्रस्ट कंबाइन विद द क्रस्ट एंड ट्रफ कंबाइन विद द ट्रफ। तो एज अ रिजल्ट वी गेट द लार्ज क्रस्ट एंड लार्ज ट्रफ, जा द वेव ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेव शेप से। और इसके मुकाबले में अगर हमारे पास एक वेव और उसके मुकाबले में ये दूसरी वेव आ रही है, ये y2 है, ये y1 है, तो ये रिजल्टेंट वेव having amplitude y is equal to y1 minus y2। तो क्या कंसेप्ट मिल रहा है यहाँ से कि एक का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ से मिल रहा है, एक का कंप्रेशन दूसरे की कंप्रेशन से मिल रहा है। These two cancel their effect और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है that is very equal to the difference in the amplitude of the individual waves। क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर साउंड वेव्स हैं तो लाउडनेस कम हो जाती है, अगर लाइट वेव्स हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाती है, और अगर एम्पलीट्यूड बराबर है एग्जैक्ट तो साउंड वेव्स की लाउडनेस ज़ीरो, लाइट वेव्स की ब्राइटनेस ज़ीरो। तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है ये वेव शेप। ये वेव शेप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इंटरफेरेंस कंप्लीट हुआ, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे बीट्स के बारे में।